ہم ملاقات کریں تو گے میری الگ پہچان لکھ دینا. مالیگاؤں شہر کے میں جب مر جاؤں تو مشہور میری جانی الگ مانی شخصیت پہچان جو لکھ کسی دینا. تعریف کی محتاج نہیں، لہو سے شاعری میں میری اپنا مقام پیشانی بنانے پہ والے ہندوستان لکھ دینا. ہندوستان ہی نہیں، ہندوستان کے افواہ کئی تھی کہ ریاستوں میری میں کئی شہروں میں طبیعت خراب ہے. اسٹیٹ کی لوگوں رونق رہے. لوگوں نے پوچھ رفیق کے سرور بیمار صاحب کر سے دیا. ہم اس شعر کی حفاظت کیجیے گا ہندوستان کہ کے 2 مشہور گز و معروف صحیح، شخصیت 2 گز راحت صحیح، اندوری مگر صاحب یہ جنہیں اس دیش میری کی نہیں ملکیت تو ہے. بلکہ پوری اے دنیا کی عوام موت، بخوبی جانتی اور مجھ کو پہچانتی زمیندار کر دیا ہے. جو آج ہمارے بیچ موجود نہیں ہے، لیکن ان کے کلام، ان کے اشعار، ان کی شاعری تا قیامت اس دنیا کے اندر موجود رہیں گے. انہی کے بارے میں جب میں مر جاؤں آج ہم کچھ خصوصی ملاقات تو رفیق میری سرور صاحب سے کریں گے اور الگ جانیں گے پہچان لکھ کہ کیا تھے راحت اندوری صاحب میں جب کی مر جاؤں تو زندگی میری کے احکامات، کس الگ طریقے سے وہ پہچان اسٹیٹ لکھ کی دینا. رونق بنا کرتے تھے اور اپنے لہو شعر اور اشعار سے سے میری اس پیشانی دنیا پہ کے ہندوستان لکھ نوجوانوں کو، دینا. بزرگوں کو اور خواتین کو اپنے شاعری کا دیوانہ بناتے تھے. آئیے ہم جانتے ہیں ان شخص کے بارے میں. آج ہم لوگوں نے ایسی خاص شخصیتوں کے ساتھ ملاقات کی ہے جن کا آج سے 20 سال پہلے اور اس کے بعد کس طریقے کا سفر ڈاکٹر راحت اندوری صاحب کے ساتھ میں گزرا اور ان کی زندگی کی کچھ انہوں نے ایسی باتیں ہم لوگوں کو بتائی ہے جو ہمارے چینل کے ذریعے ہم آپ کو بتائیں گے. ہمارے ساتھ میں تھے رفیق سرور صاحب جو ایک انقلابی شاعر ہیں جن کا کافی نام دور دور تک مشہور ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو دوسرے شاعر ہمارے ساتھ میں موجود تھے مالیگاوی مجاور مالیگاوی صاحب، جو واہ واہ کیا بات ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے کئی ایپیسوڈ کو انجام دیا، اور ڈاکٹر راحت اندوری صاحب کے ساتھ میں بھی انہوں نے بہت ہی لمحے، بہت ہی وقت گزارے ہیں. کہیں ڈائزوں کے اوپر وہ ان کے ساتھ موجود رہے، کہیں سفر ان کے ساتھ کیا، کہیں وقت ان کے ساتھ گزارا. آج ہم لوگوں نے ہماری وسعت کے مطابق یہ جاننے کی کوشش کی کہ ڈاکٹر راحت اندوری صاحب کی حیات زندگی کیا رہی، ان کا مزاج اپنے چھوٹے شاعروں کے ساتھ کس قدر کس قدر انداز ان کا رہا کرتا تھا، وہ کس قدر رہنمائی کیا کرتے تھے، کس قدر ان کی سراہنا کیا کرتے تھے، کس قدر وہ سرپرستی کیا کرتے تھے. آج ہم نے تمام ہی باتیں ان سے یہاں پر جانی ہیں اور ان سے سنی سمجھی، تو ہمیں پتہ چلا کہ ڈاکٹر راحت اندوری صاحب ایک ایسے شاعر رہے، ایسے شاعر اس دنیا سے گزرے جن کی جگہ کو کوئی دوسرا شاعر پر نہیں کر سکتا. یہ ایک کڑوی سچائی ہے جو ہمیں قبول کرنی ہے. ہم نے جتنی باتیں ان سے سنی ہیں ہم ہمارے چینل کے ذریعے آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. راحت اندوری آج انہیں مرحوم کہتے ہوئے کلیجہ منہ کو آ رہا ہے. تو دنیا اردو ادب کا وہ قلندر تھا، وہ نام تھا، وہ شخصیت تھے کہ جنہیں سن سن کر ہم نے شاعری سیکھی ہے، جنہیں سن کر ہم شاعری کی، جو میرے خاص طور سے میرے تو آئیڈیل تھے. کئی مشاعرے میں ملاقات کم سے کم 20 سال پہلے مالیگاؤں کے مشاعرے میں اور دیگر مشاعرے میں ان سے ملاقات ہوا کرتی تھی، اور نئے لکھنے والوں کو کافی حوصلہ دیا کرتے تھے. ایک قلندر صفت انسان تھے جن کے جانے کے بعد میرے خیال سے ہندوستان نہیں، ہندوستان کے باہر تک ایک عجیب غم و اندوہ کا عالم ہے. آج بھی دوسرا دن ہے مگر واٹس ایپ پر، فیس بک پر ان کی تصاویر، ان کے تعلق سے لوگ لکھتے ہی جا رہے ہیں. کل سے میں پریشان ہوں کیا لکھوں، مگر ذہن ساتھ نہیں دے رہا ہے. کبھی کبھی ان سے میری گفتگو ہوا کرتی تھی، کبھی فون پہ مجھے کافی حوصلہ دیا کرتے تھے. ان کے جانے کے بعد ہم کیا محسوس کر رہے ہیں دنیا میں ہم ہی جان سکتے ہیں، جو ہم بیان نہیں کر سکتے. کہ دیوار ہے اداس ہر ایک در اداس ہے، دیوار ہے اداس ہر ایک در اداس ہے، کیوں آج میرے شہر کا منظر اداس ہے. اور صحن ادب سے کون یہ اٹھ کر چلا گیا، محفل سجی ہے اور سخن اداس ہے.
क्या उनके ताल्लुक से हम लिखेंगे। उनकी शायरी की कोई सरहद नहीं है, ना जाने कहाँ तक उनकी शायरी सुनी जाती है, पढ़ी जाती है, बोली जाती है। वो कलंदर इंसान थे जिन्होंने हुकूमत वक्त की आँख में आँख मिलाकर बात की, किसी मामले में कभी दब कर बात नहीं की। अगर कहते हैं कि लबे दियों की हवा में उछालते रहना, गुलों के रंग पे तेज़ाब डालते रहना, मैं नूर बन के ज़माने में फैल जाऊंगा, तुम आफ्ताब में कीड़े निकालते रहना। कोई और भाई बता सकते हैं आपको? मैं मुजावर मालेगामी एक तंज़ बुझा का शायर हूँ और तकरीबन मैंने डॉक्टर राहत साहब के साथ काफ़ी मुशायरे पढ़े हैं। हिंदुस्तान के अलावा बैरून मुल्क में मुशायरे पढ़े हैं। राहत साहब के ताल्लुक से क्या कहा जाए, वो फ़र्द नहीं, वो अपने आप में एक अंजुमन थे। बिल्कुल सच बात है। वो शख्स नहीं, वो शख्सियत थे। वो जहाँ बैठ जाते, वो जिस मंच पर, जिस स्टेज पर अगर वो हाजिर हैं, बैठे हैं, विराजमान हैं, तो ऐसा लगता कोई बैठा है। मुशायरे के स्टेज पर जब वो रहते हैं तो मुशायरा बहुत कामयाब होता है, बहुत हिट होता है ये। और उनके एक ख़ास बात ये है कि उनके एक हाथ में इनकलाब का परचम था, दूसरे हाथ में मोहब्बत का लम था। वो अपनी बात अपनी शायरी से आवाम तक पहुंचाते थे और ऐवान हुकूमत तक अपनी बात मनवाते थे। सच बात कहने से राहत साहब कभी नहीं चूके। उनमें ये बिल्कुल सच्चाई थी। बेखौफ निडर होकर हर बात कह दिया करते थे। ये कोई नेता थे, मुस्लिम नेता, बीजेपी के नेता थे। एक मुशायरे में स्टेज पर बैठे थे तो डॉक्टर साहब ने शेर पढ़ा कि हमने जिनको बद्दुआ दी भाजपाई हो गया। ये सच्चा वाकया है। एक मरतबा बिजनौर में हम साथ में थे, बिजनौर मुशायरे में साथ में थे। जब हम वापसी बिजनौर से दिल्ली आए और उसके अलावा एक बात और उसमें ख़ास बात ये थी कि सफ़र में अगर राहत साहब हैं तो वो किसी को खर्च करने नहीं देते थे। ख़ास बात ये थी, वो कितना अमीर हो, रईस हो, कबीर हो, वो उसकी मजाल ही नहीं कि वो बिल पे करे। ख़ास बात ये थी। डॉक्टर साहब, मुझे एक शेर मुझे 4 में से बहुत याद है। एक मुशायरा था, उस मुशायरे में तकरीबन बड़े बड़े शुराए कराम थे। किसी ने उनसे कहा कि डॉक्टर साहब, आज के मुशायरे में तो अदब के कुतुब मीनार हैं, आप क्या पढ़ेंगे? मैंने कहा यार देखा जाएगा। उन्होंने वहाँ पर 4 मिसरे पढ़े मुशायरा। उन्होंने जब 4 मिसरे ये थे कि सूरज सितारे चाँद मेरे साथ में रहे, जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे, और शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधी से कोई कह दे के औकात में रहे। उन्हें बर्जस्तगी काफ़ी थी। छोटे शोरा की उनके सर पर हाथ रखा करते थे, उन्हें बताया करते थे कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसा पढ़ें। उन्होंने मेरी काफ़ी हौसला अफजाई की है। उनके जाने से वाकई में अदब का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, इसमें कोई शक नहीं। और इस खिला का पुर होना मैं समझता हूँ काफ़ी दिन लग जाएंगे, काफ़ी अरसा लग सकता है इस खिला का पुर होने के लिए। और ये तो बात ये भी है, अब तो मुशायरे यहाँ से मैं समझता बेजान मुशायरे हो गए। डॉक्टर साहब के चले जाने से मुशायरे की रौनक चली गई। समझ एक रौनक थी, वो मुशायरे की रौनक थी। उनके जाने से मुझे अब लगता नहीं कि वैसे मुशायरे होंगे जैसे पहले हुआ करते थे। कभी सम्मेलनों में भी जब जाया करते थे, उन्होंने वही शायरी पेश की जो उर्दू के स्टेज पर पढ़ा करते थे। उनमें यह बात नहीं थी कि यार उर्दू के मंच पे अलग पढ़ा जाए और हिंदी के मंच पे अलग पढ़ा जाए। उन्होंने हर बात अपनी मनवाई। वो मंच कोई भी हो, स्टेज कोई भी हो,
उन्होंने अपनी बात बराबर माना। कहता ही हमारे हुकूमत के खिलाफ भी शेर रहता है। अगर कभी हुकूमत ने गलत की है, वो किसी भी कौम के लिए, किसी भी मजहब के लिए, किसी धर्म के लिए, वो उनके अंदर जात धर्म नाम कोई चीज़ नहीं थी। मतलब कहते किसी वो हर बराबर इक्वल समझते थे, छोटा बड़ा किसी को, सबको एक लेवल समझते थे। वो किसी जात को, किसी धर्म का हो, सबको भाई भाई समझते थे। अगर किसी के खिलाफ जुल्म हो रहा है, उन्होंने बाकायदा अपनी शायरी के जरिए आवाम तक पहुँचाई है और हुकूमत तक पहुँचाई हुई। बहुत सारे अवार्ड, इंदिरा गांधी अवार्ड मिला उन्हें, डॉक्टर जाकिर हुसैन अवार्ड मिला है, और अपने मध्य प्रदेश के उर्दू अकेडमी का अवार्ड मिला है। बहुत सारे उनको अवार्ड मिले। हाँ, मैं समझता हूँ ये डॉक्टर साहब को भी नहीं मालूम मुझे कौन कौन से अवार्ड मिला उनको खुद नहीं मालूम है। उन्होंने अवार्ड कभी मतलब उन्होंने कभी अहमियत नहीं दी। उनका काम, उनका मैसेज ये था कि बस आवाम तक मेरी बात पहुँचे, आवाम जागे, आवाम समझे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरे शेर क्या कहना चाहते हैं, मेरे शेर आपसे क्या अपील करना चाहते हैं। बस उनका ये मकसद था। उनका मकसद ये कतई नहीं था कि वो पैसा कमाना उनका मकसद ही नहीं था। हाँ, उनका मकसद ये था कि बस हिंदुस्तान एक अच्छा मुल्क है और अच्छा रहे, सब लोग मिलजुल कर रहें, भाईचारा कायम रहे, उनकी ये तालीम रहा करती हर शेर। मेरे खुलूस की गहराई से नहीं मिलते, ये झूठे लोग हैं सच्चाई से नहीं मिलते, मोहब्बतों का सबक दे रहे हैं दुनिया को, जो ईद अपने सगे भाई से नहीं मिलते। अस्सलाम वालेकुम। आज अभी मोहतरम रफ़ीक सरवर साहब, मुजाविर मालेगामी साहब ने मोहतरमुल मुकाम मरहूम राहत इंदौरी साहब की ज़िंदगी के कुछ लम्हात, कुछ उनकी यादें, कुछ उनकी बात आप तक पेश की। मैं तो शहर मालेगांव का बहुत सा छोटा सा शायर हूँ, और राहत इंदौरी साहब के ताल्लुक़ से कहना मैं समझता हूँ कि मुझे लफ्ज़ नहीं मिल सकते। राहत इंदौरी साहब से 3 साल पहले 2017 में पहली मरतबा बुरहानपुर के एक नातिया मुशायरे में मुलाकात हुई। राहत साहब मुशायरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया चला। राहत साहब आखिर में आए, आखिर में आकर के उन्होंने अपना कलाम पेश किया, और पढ़ते वक्त लाइट चली गई। लाइट गई तो तकरीबन 1-1.25 घंटा पढ़ चुके थे। कन्वीनर मुशायरा वहाँ आए और राहत साहब से कहा कि जनरेटर शुरू होने के बाद हम चाहते हैं कि आप गज़ल के कुछ शेर सुनाएं। तो राहत साहब ने ये उनका जुमला मुझे आज तक याद है और इंशाअल्लाह हमेशा याद रहेगा। उन्होंने कहा कि आज का ये मुशायरा है नातिया, और राहत आज हुजूर की शान में शेर सुनाने आए, आप मुझसे गज़ल के शेर पढ़वाओगे, हो सकता है क्या? ये अल्लाह की मर्ज़ी थी जो मैं यहाँ आ गया और हुजूर की शान में नाते पाक के कुछ शेर मैं आप तक पहुँचाया हूँ। गज़ल के शेर मैं नहीं पढ़ूँगा। राहत साहब के साथ एक मरतबा जाना हुआ। राहत साहब की शख्सियत, राहत साहब दुनिया अदब जानती है। आज उनके जाने का गम पूरी दुनिया अदब को है, पूरी दुनिया अदब को अफसोस है, और अल्लाह जानता है कि हम शोरा, हिंदुस्तान के जितने भी शोरा हैं, सब बस यही एक बात कह रहे हैं कि राहत साहब के जाने से हो सकता है कि मुशायरों की तादाद कम हो जाए, और हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जब मुशायरा होता है, डाइस लगता है, डाइस के पीछे जो बैनर हुआ करते हैं उसमें राहत इंदौरी का नाम ही काफ़ी हुआ करता था। तो डाइस पे रहना दूर की बात, जिस मुशायरे में जाते थे दुनिया अदब जानती है, तो जिस मुशायरे में वो चले गए तो फिर मुशायरा हो गया। राहत साहब के साथ 2 से 4-5 मुशायरा पढ़ने का इत्तेफाक पड़ा। जब वो डाइस पर होते थे तो हम जैसे छोटे शोरा इकराम को बहुत डर लगा रहता था। मगर एक मरतबा चेन्नई के एक मुशायरे से रेलवे स्टेशन जाना था। अब मैं बैग ले करके अपना खड़ा हुआ था। जब वो उनकी गाड़ी आई, गाड़ी में बैठे तो ड्राइवर से उन्होंने कहा कि वो सुहेल आज़ाद को आवाज़ दो, उस बच्चे को आवाज़ दो। जब मैं वहाँ गया तो डॉक्टर साहब ने कहा कि कहाँ जाना है? मैंने कहा रेलवे स्टेशन। तो मेरी गाड़ी बैठो। तब लगा कि बाप होता है। मुशायरे के डाइस में उनका रोल, उनका किरदार अलग होता था, और मुशायरे के हट के
उनका किरदार अलग होता था, क्योंकि बहुत शोरे कराम जो उनसे नज़दीक रहे हैं, वो जब उनकी बातें करते हैं, जब रूम पार्टनर बनते हैं, उनके रूम में वक्त गुजारते हैं, तो वो लोग जब बातें बताते हैं बड़ा ताज्जुब होता है। आज उनके जाने से मुझे ही नहीं दुनिया अदब को दुख हुआ, गम हुआ, अफसोस हुआ। हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाएँ। हम दुआ करते हैं उनके अहल खाना को सब्र जमील अता फरमाएँ, और उनके चाहने वालों से इतनी गुजारिश करते हैं कि उनके हक़ में ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें कि अल्लाह पाक मरहूम की मग़फ़िरत करें। जैसे राहत साहब कहा करते थे कि बहुत सारी बात कम लफ्ज़ों में, जैसे कि ताहिर फराज ने कहा है, जब कभी बोलना वक्त पर बोलना, मुद्दतों सोचना, मुख्तसर बोलना। तो राहत साहब वही करते थे। राहत साहब का शेर है कि मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो, मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो, आसमां लाए हो ले आओ ज़मीं पर रख दो, आसमां लाए हो ले आओ ज़मीं पर रख दो, हमने जिस ताक पे कुछ टूटे दिए रखे हैं, चांद तारों को भी ले जा कर के वहीं पर रख दो। ये शायरी थी राहत साहब। और इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हम